नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। और आज हम बात करेंगे मार्स इन द सिक्स्थ हाउस, छठे भाव मंगल। दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट प्लेसमेंट्स। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट फॉर पर्सन टू हैव, स्पेशली फॉर द मेल्स। मैंने बहुत शानदार इसके रिजल्ट्स देखे हैं। देखिए, 6 8 12 बदनाम है, बट हर प्लेनेट हर त्रिक भाव में गलत रिजल्ट दे ऐसा होता नहीं है। So these are difficult houses, these are tough houses, but tough houses can be handled by tough planets. Not every point, particularly 12th is very tricky. 12th house Mars I absolutely don't like, but 6th house Mars is awesome. You know, 6th house is the house of routines, house of enemies, house of competition, house of co-workers, everywhere where you have to assert yourself. And what is Mars? Mars is a fighter, is a warrior, is a doer, is a go-getter. So basically, this is a black cat commando behind the enemy lines, right? So 4th house Mars is the commando in his house. He can't do much. He at most is a home guard. 6th house Mars is the soldier in the enemy territory. ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला ब्लैक ऑप सोल्जर है. Somebody who is out there in the house of the enemy doing all the damage. So this is one of the best positions of Mars to have. So इसमें होता क्या है? सबसे पहली चीज, इसको शत्रुहंता योग बोलते हैं. So शत्रुहंता means somebody who can vanquish the enemies, somebody who will triumph over the enemies. सो सिक्स हाउस में शनि और मंगल बहुत अच्छे फल देते हैं, बट पर्टिकुलरली मंगल टेक्स द केक इन द सिक्स हाउस. सो जब भी मैंने छठे भाव मंगल देखा, आई हैव सीन सम रियली सक्सेसफुल पीपल, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू कन्फ्लिक्ट्स और कोर्ट केसेस और यू नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ऑल्दो वहाँ पे 10th हाउस मंगल ज़्यादा काम करता, बट दिस इज द सेकंड बेस्ट. बट दीज गाइज आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स. दे हैव द एबिलिटी टू फाइट इट आउट, टू स्ट्रगल इट आउट. और ये अक्सर दे आर एबल टू डोमिनेट देयर एनिमीज. दे आर एबल टू यू नो स्टे वन स्टेप अहेड. कुछ ना कुछ हालात ऐसे बनते हैं that they end up winning. These guys are the fighters. They are never shy of getting into a fight. वो चाहे शाउटिंग कॉन्टेस्ट हो, वो चाहे धक्का मुक्की हो, वो चाहे फुल ब्लोन मारपीट हो, these guys won't back off. That's the beauty of these people. अगर डिबेट भी चल रहा है व्हाट्सएप पे एंड द गाय हैज अ सिक्स्थ हाउस मार्स, he will fight till the bloody end. He will try to be the last man standing. So these guys don't back off. So वो कहते हैं यारों का यार दुश्मनों का दुश्मन. दुश्मनों का दुश्मन is sixth house Mars, and these guys have that fiery courage which is sadly lacking in a lot of people. But if you have a friend or a son or somebody with this yoga, you can be assured that you have your safety. They will do anything to protect their own, and they are not afraid of putting themselves on the line, and they are not afraid of getting into the line of fire to protect the people they love. Apart from this, sixth house Mars, I have seen anger issues. लोगों को गुस्सा बहुत आता है इनको, because eighth house मंगल का दृष्टि, it falls on the lagna. So you need a certain amount of anger to overcome your enemies. So yes, they are angry by nature. They are very quick to temper. Particularly अगर इनका सन कहीं राहु या मंगल के प्रभाव में है, it's a fiery combo. So these guys are like really difficult to put down when they are angry. And temper हमेशा नाक पे रहेगा. जरा सा कुछ हुआ, they will blow up. Good part, they are very good at emergencies, because sixth house is also the house of emergencies and health. So I won't say they are very good at management. Management is a Sun Mercury concept. They can manage anything, but Mangal is somebody you need in the times of emergency, because Sun can be a little slow to respond. Sun can think and then act. When it's like sheer firefighting kind of a level, you need a Mangal. So sixth house Mangal is the master of emergencies. If there's a health scare, if there's an accident, there is a fire incident, you will find this yoga in a lot of firefighters charts and a lot of policemen and army men charts. I've often seen a 6, 1, 7 or 10 Mangal with these people. And then they are pretty ambitious, because
हारना इनको पसंद नहीं, दे विल वांट टू स्लग इट आउट वट एवर मैनर. अब हाउ दे ओवरकम देयर कंपटीशन अ लॉट डिपेंड्स कि मंगल कौन से राशि में है, लग्न में क्या, एंड ऑल दैट. यू हैव टू लुक चार्ट एज अ होल. यू कैन नॉट गो बाय वन प्लेसमेंट एंड से नहीं साहब मेरे साथ में ऐसा नहीं होता भाई. यू हैव टू लुक द चार्ट एज अ होल. So these guys are pretty ambitious. They are go-getters. Not as ambitious as a 10th house Mangal. That's a totally different beast. But yes, these guys want to win the immediate. जो आंखों के सामने वहां पे इनको जीतना है. एक और चीज होता है, ये हमेशा जल्दी में होते हैं. These guys cannot bloody wait. इनको जो चाहिए यूं चाहिए फिर. और particularly if Rahu is involved. एंड इट हैम्पर्स देयर रिलेशनशिप्स. अक्सर ये कोवर्कर्स में थोड़े अनपॉपुलर होते हैं क्योंकि इनकी दादागिरी बहुत होती है वहां पे. प्लस इनको वेट अच्छा नहीं लगता. जरा सा कुछ, अरे यार तू कितना देर लगा, तू छोड़ मैं करता हूँ टाइप. सो दे कैन बी अ लिटिल अनपॉपुलर, बट दीज आर द गाइस पीपल टर्न टू व्हेन थिंग्स गो डाउन साउथ. इसके अलावा दे आर प्रिटी हेल्थ कॉन्शियस क्योंकि ये एक एथलेटिक प्लेसमेंट है. छठे मंगल हारने से मना कर देता, दे जस्ट रिफ्यूज टू लूज. और उसका सबसे सीधा एग्जांपल अक्सर निकलता है स्पोर्ट्स में. दिस गाइस आर इन स्पोर्ट्स और ये आखिरी बॉल तक लड़ते हैं. दे आर वेरी वेरी गुड एट मैनेजिंग दिस विन और लूज सिचुएशंस. थोड़ा इनमें उस मसले में गट्स बहुत होते हैं. पर्टिकुलरली अगर मून स्ट्रांग हो, दिस गाइस मेक वेरी वेरी गुड ट्रबल शूटर्स. और उस चक्कर में क्या है, सिंस दे वांट टू एक्सेल एट कंपटीशन एंड स्पोर्ट्स, तो ये हेल्दी बहुत होते हैं. यू विल फाइंड देम इन जिम्स, बट यू विल यूजुअली फाइंड देम इन ट्रैक एंड फील्ड एंड पर्टिकुलरली कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स वाले चीजों में, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग. दे लाइक टू यू नो गेट ऑन विद दैट. एंड इनके मुक्के हमेशा तने रहते हैं, आ जाओ. So unlike Sun, which tries to avoid conflict and will rather play with the mind games and will use violence as the last resort, मंगल का हाथ सीधे तलवार पे जाता है. मंगल इज द कमांडर इन चीफ. तो मंगल के मुक्के तने रहते हैं, आज वो लड़ ले. सो आई हैव ऑफन सीन दिस इन द चार्ट ऑफ बॉक्सर्स एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स वालों के. मैंने चार्ट में ये योग बहुत देखा है. एंड बाय एंड लार्ज दिस इज अ वेरी मैनली योगा टू हैव. हर खाना अच्छा नहीं होता, हर खाना बुरा नहीं होता, हर खाने की अच्छाई बुराई होती है. सिमिलरली वो जो कॉम्बिनेशन एक खाने और प्लेनेट का होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ. सो छठे खाने में अगर चंद्रमा हो, मैं उसको बहुत खराब मानता हूं, बट छठे खाने मंगल हो, बेस्ट प्लेसमेंट. सो इफ यू हैव अ सिक्स्थ हाउस मंगल, बी हैप्पी अबाउट इट. It will make you win in life. It will give you the fighting spirit. It will give you the fiery spirit. It will give you the courage to never say die and fight till the last minute, fight till the last bolt, fight till the battle is over. So this is a warrior's Mars, and that's the best kind of Mars. 10th house Mars is the commander in chief Mars. सिक्स्थ हाउस मार्स इज द सोल्जर मार्स. एट्थ हाउस मार्स इज द ब्लैक ऑप्स मार्स. उसकी हम बात करेंगे. दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. सो वो आगे आएगा. नेक्स्ट वुड बी मंगल इन द सेवंथ हाउस. सो उसका हम करेंगे. बट इफ आई हैव टू गिव माई वोट नेक्स्ट टू अ 10th हाउस मार्स, माई सेकेंड फेवरेट इज द सिक्स्थ हाउस मार्स फॉर ऑब्वियस रीजन. क्योंकि याद रखिए, मंगल जहां बैठता है आदमी वहां दादागिरी करता है. दादागिरी करनी है तो दोस्तों पे क्यों भाई, दुश्मनों पे क्यों नहीं. सो ये जो है ना, थोड़ा सनी देओल वाला मार्स है. सो आई लाइक दिस मार्स, द शत्रुहंता मार्स. सो इसी के साथ वी रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द अदर वन. जय मंगल देव.